morning, sir. So students are joining now? Students are joining. Most of the students, those who are having their classes, they may not be able to join. But I Yeah. have assured them that we are going to upload the videos on YouTube from tomorrow onwards. So whatever Oh, sessions they have missed, they would oh, be able to surely see, and they would be interact with us, because it's not a one-day session. These are going to be all the next 6 days. We are going to be together, maybe from 10 to 3. yeah, yeah. And I'm sure that everybody would be benefited out of it. The ultimate objective is not only to see the live session and interact with the faculty, but the ultimate objective is to develop self and Yeah, develop an attitude of entrepreneurship. yeah. That's true. That's true. Okay. So we shall start with the first session. Uh, First of all, let me introduce myself, because I am seeing many of you are from outside our college, and I'm sure that everybody should know whosoever is going to speak to them. So my name is Amar Damle. I'm working as Assistant Professor, Department of Psychology, Srimati Bindhani Mahila Mahavidyalaya. By profession, I'm a teacher, I'm a trainer, I'm a mentor for many organizations as such, and I'm a teacher of psychology. Not only that, I'm working in the Department of Psychology since last 12 years. I'm associated with many institutions and organizations outside this particular college, and I'm associated with so many number of people and institutions for the development of the students. This particular workshop, that is WAD, is normally labeled as Workshop on Attitude Development. So basically, the objective of this particular workshop, when we began 10 years before, was to develop a positive attitude among students and those participants who wish to change themselves. We very strongly believe at Srimati Bindhani Mahila Mahavidyalaya, we very strongly believe that ability can be developed. Ability people have inherited, skills can also be developed and modified, but the attitude with which a person works requires a lot of time to change. And if a person has a right attitude, perhaps his entire work and his entire personality changes. That is what we very strongly believe. I'm sure that this particular concept of the name of WAD was given by Dr. Surendra Gore, wherein he started about say 20 years before. He started with WAD in Ramdev Baba College of Engineering, and now we have taken up. That was attitude, rather it was aptitude development. We specifically focus on developing the attitude. So we try to develop. Yes, madam, you want to speak something? Sir, better that you shift to mixed language so that the crowd will become more comfortable. I think that. Yeah, sure. I'll surely do that. Yeah, तो okay. हमने 10 साल पहले जो शुरुआत की थी 2010 में हमने पहला वार्ड लिया था, एंड वो जो कंसेप्ट था वो कंसेप्ट ये कि हमारा दृष्टिकोण सही होना चाहिए, बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली सही होना शुरू हो जाती। इसी के साथ वी बिगैन विद द कंसेप्ट ऑफ गिविंग इनपुट्स टू वेरियस स्टूडेंट्स फ्रॉम आवर कॉलेज, और बाकी के भी बाहर के सभी इंस्टीट्यूशन से हमने जोड़ के हमने काम करना शुरू किया। 2020 में जो प्रॉब्लम आया 2021 तक के वो कंटिन्यू रहा। इस वजह से पिछले साल और उसके पिछले साल भी स्टार्टेड विद ई वर्कशॉप्स। तो ये जो हमारा वैड है ये पिछले साल 3 दिन का था, उसके पिछले साल भी 3 दिन का था, एंड दिस ईयर वी स्टार्टेड थिंकिंग दैट व्हाट एग्जैक्टली शुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ वैड। तो हमने ये डिफाइन किया, हमने ये सोचा कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट मतलब स्वयं रोजगार और उसके साथ में जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें जो है वो हम विद्यार्थियों से बात करेंगे, एंड नॉट ओनली दैट, अपने आप को खुद को कैसे डेवलप करें इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इन टोटलिटी हम करीब 18 अलग अलग मॉड्यूल्स के ऊपर बात करने वाले हैं, जो मैं समझता हूँ बहुत सारे इनपुट्स या बहुत सारी नई चीजें आपको सिखाएगा, बहुत सारी नई चीजें आपको देगा। करीब 6 फैकल्टीज या 7 फैकल्टीज आपके साथ में इंटरेक्ट करेगी। ये अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट्स है, महारथी है, और ये जानते हैं कि स्टूडेंट से और यंग बच्चों से कैसे इंटरेक्शन किया जाए। इस साल जो बैट को हमें रिस्पांस मिला है दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी एक्सेप्शनल। मैं समझता हूँ करीब 550 के आसपास व्हाट्सएप के ग्रुप्स के अंदर में लोगों ने रजिस्टर किया है, और नॉट ओनली दैट
280 registrations we had till yesterday night. सुबह ultimately 8 बजे मुझे उसको बंद करना पड़ा. And I'm very happy that maximum number of students would be benefited to a great extent. Maybe from around 17 different institutions across Nagpur. नागपुर ही नहीं, नागपुर के बाहर के भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं. ये जो कुछ भी आप सुन रहे हो या सुनने वाले हो इन 3 दिनों में, पॉजिटिवली ये सारी चीजें जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है और ये सारी की सारी चीजें आपको कल से यूट्यूब श्रीमती भिंजानी महिला महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को मिल सकती है. तो अगर कोई चीज आपकी मिस हो जाती है, क्लासेस है, आपकी प्रायोरिटीज कुछ डिफरेंट है, आप मिस करते हो, तो कल सुबह से आप इसको देख सकते हो. रेगुलर बेसिस पे इसको पोस्ट करने का काम हम शुरू करेंगे. तो एक एक मॉड्यूल जो है वो कंफर्टेबली आप देख पाओगे. छोटे मॉड्यूल्स रहेंगे लेकिन कंफर्टेबली आप देख पाओगे, समझ पाओगे. हमारा नंबर आप नोट कर लीजिए 9822219879. मैं चैट बॉक्स में आपके नोट कर रहा हूं, तो कंफर्टेबली आप इसको नोट कर सकते हैं. और इस नंबर पे आप मुझे कभी भी संपर्क कर सकते हो. पैसे छोड़ के, जैसे मैं नॉर्मली बोलता हूँ लोगों को कि पैसे छोड़ के किसी को भी कभी कोई समस्या हो तो मुझे इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो. श्रीमती भिंजानी महिला महाविद्यालय एक इंस्टीट्यूशन ऐसा है जो कि अपने आप में यूनिक है. ये एक सिंगल फैकल्टी कॉलेज है, ह्यूमैनिटीज का वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशंस इन द सिटी ऑफ नागपुर, पर्टिकुलरली इन सेंट्रल एंड पूर्व नागपुर में. ये बहुत 1960 से ये ऑपरेट कर रहा है. और सब मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे प्रिंसिपल पाटिल मैडम का और हमारे वाइस प्रिंसिपल मराठे मैडम का, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आप सबके सामने बात करता हूँ. Similarly, I would like to thank the principals, IQAC coordinators and many other teachers of the other institutions. जैसे कि आप देख पा रहे हो मोता साइंस कॉलेज की हमारी वाइस प्रिंसिपल मैडम रीना साहा यहाँ पे है. हमारे ही कॉलेज की डॉक्टर चारुदत्त जोशी जो कि वैक की को कोऑर्डिनेटर है, और साथ साथ में वो हमारे इंद्रधनु क्लस्टर की को कोऑर्डिनेटर है. तो मैं सभी को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने सभी स्टूडेंट्स तक की हमारी बात पहुंचाई और अपने आप को डेवलप करने का सारे स्टूडेंट्स को मौका दिया. वी कम टू दी पॉइंट डायरेक्टली, क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं है, बहुत फॉर्मल इंट्रोडक्शन वाला भाग नहीं है, बहुत क्या कहूँगा मैं उसे, इनॉग्रेशन वाला कोई पार्ट नहीं है. आपको शायद सरप्राइज, यू मस्ट बी सरप्राइज बिकॉज आई एम श्योर कि किसी भी एक प्रोग्राम के लिए फॉर्मेलिटी लोगों की बहुत जरूरी लोग समझते हैं, लेकिन मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि जो मैं कहना चाहता हूँ वो डायरेक्टली मैं आप लोगों से अगर बात पहुंचा पाया तो आई हैव डन माय वर्क. हमारा जो पहला सेशन है, दैट सेशन वुड बी कंटिन्यू टिल अबाउट 11:15. आपको एक 10 मिनट का ब्रेक मिलेगा. उसके बाद स्नेहा मैडम वुड बी ज्वाइनिंग. शी herself is a clinical psychologist. She would be joining for the second session. Then we would have her session for about say 1 hour 15 minutes or 20 minutes, and then again we'll be giving a 10-minute break and again we'll be joining. ये ब्रेक इसलिए है क्योंकि मैं समझता हूँ कि कंटिन्यूअसली घंटा सवा घंटा एक साथ बात सुनना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, और वो भी डिजिटल फॉर्मेट में सुनना बहुत डिफिकल्ट होता है. रूबरू सामने बैठ के बातचीत की जाए तो बात अलग है. हमारा जो आज का पहला सेशन है, दैट सेशन इज बेसिकली ऑन entrepreneurship, the concept of entrepreneurship, and we would be talking specially on the prerequisites of any kind of business. ठीक है, सेल्फ डेवलपमेंट की सारी बातें जो है वो आगे चलती रहेगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप ये कंसेप्ट ही हमको समझने की जरूरत है. इसके लिए हम 3 वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे. आपके जो कोई भी सवाल हो, जस्ट इन केस आप सवाल बीच में पूछना चाहते हो तो प्लीज रेज योर हैंड, आई वुड श्योरली कम बैक टू यू. ऑडियोज जितना समय तक के बंद रहेंगे उतना मेरे लिए बेनिफिशियल होगा. हो सकता है कभी कभी नेटवर्क की वजह से मेरी आवाज नहीं आए तो प्लीज लेट मी नो. आई हैव लॉग्ड इन टू 2 अकाउंट्स, तो ऑब्वियसली आप लोगों तक मेरी आवाज कंटिन्यूअसली पहुंचे, ये मेरा उसके पीछे का मतलब है. एंटरप्रेन्योरशिप ये कंसेप्ट समझने के लिए हमें 3 वर्ड्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा या सहारा लेना पड़ेगा. सबसे पहला जो वर्ड है उसको हम कहते हैं ट्रेडिंग, दूसरा जो वर्ड है उसको हम कहते हैं बिजनेस, और तीसरा जो वर्ड है उसको हम कहते हैं इंडस्ट्री. तो सबसे पहला जो वर्ड है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं, ट्रेड क्या होता है, ट्रेडिंग क्या होता है. तो कोई भी चीज हम कम दाम में खरीदते हैं और मुनाफे के साथ में उसको बेचते हैं, मे बी ऑन अ डेली बेसिस. आपके घर के आसपास में ट्रेडर्स आपने देखे होंगे, वो
गाड़ी लेके जाने वाला व्यक्ति जो है उसको आपने देखा होगा। तो वो रोज सामान खरीदता है और रोज उसको बेचता है, उसमें से जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को वो और इन्वेस्ट करता है, शायद री इन्वेस्ट करता है और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाता है। ये ट्रेडर की एक बहुत बड़ी खासियत होती है, कंसेप्ट समझने वाली है। ट्रेडर की बहुत बड़ी खासियत होती है कि इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होता, नंबर एक। नंबर दूसरा, ये जो है ये कभी भी अपने एटम्स को या ब्रांड्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे आपके घर के आसपास में आपने देखा होगा कि कोई एक व्यक्ति जो है वो अभी समर शुरू है तो वो गन्ने का रस बेच रहा है, कुछ समय के बाद में वो जामुन बेचेगा, थोड़ी बारिश शुरू होगी तो कुछ समय के बाद में वो सीताफल बेचेगा एंड सो ऑन। सो पीपल विल कीप ऑन शिफ्टिंग फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। बड़े पैमाने पे जब हम इसको करते हैं तो इतने आसानी से इस प्रोडक्ट्स को चेंज करना नहीं पॉसिबल होता है। तो ट्रेडर जो है वो एवरी डे रोटेशन जो है दैट इज ऑन अ डेली बेसिस। जैसे मैं कुछ एग्जांपल दूंगा, आपने ही शहर में, नागपुर शहर में आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में या पिछले कुछ महीनों में चाय के बहुत सारे, मतलब आई वुड से नॉट लेस देन 25 to 30 न्यू ब्रांड्स और न्यू शॉप्स ऑफ टी, चाय टपरियां। पहले टपरियां होती थी, अब भी टपरियां हैं, लेकिन ये टपरियों के साथ साथ में ब्रांड्स भी कुछ आ गए। फॉर एग्जाम्पल चाय सुट्टा हो गया, या एग्जाम्पल आपके जो भी पुणे मुंबई के जो भी चाय वाले लोग हैं, दे आर इनटू इट। अब ऐसा तो नहीं कि चाय पहले बिकती नहीं थी और अभी बिकना शुरू हो गई, ठीक है, लेकिन पीपल हैव क्रिएटेड अ ब्रांड ऑफ देयर ओन एंड पीपल हैव थॉट अबाउट समथिंग एल्स एंड दे आर सेलिंग इट। पहले चाय 2 रुपए की 5 रुपए की बिकती थी, अब वही चाय जो है वो 10 रुपए की 15 रुपए की अलग अलग फ्लेवर्स के साथ में, करीब 100-200 फ्लेवर्स के साथ में वो बिकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिजनेस जो है उसकी शुरुआत ट्रेडिंग से शायद होती है, टू बिगिन विद फ्रॉम अ लोअर एंड। धीरे धीरे करके जैसे आप इसको बढ़ाते हो, जैसे जैसे आप इसकी ब्रांचेस खोलते हो या जैसे जैसे आप इसको एक्सपांड करते हो, उसको हम बिजनेस बोलते हैं। ट्रेडिंग छोटे पैमाने पे होता है, बिजनेस जो है थोड़ा सा बड़े पैमाने पे किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे कि ये बड़े बड़े शोरूम जितने भी आपके हैं, मे बी आपके कपड़ों के शोरूम्स हो गए या ऑटोमोबाइल के शोरूम्स हो गए, या आपके टीवी फ्रिज रेफ्रिजरेटर वाले शोरूम्स हो गए, या आपके एफएमसीजी प्रोडक्ट के जितने भी आपके सो कॉल्ड जो हम इसको बोलते हैं मॉल्स हो गए, जिसमें जहां पे शोरूम्स होते हैं, आप देखोगे कि द इन्वेस्टमेंट इज वेरी हाई। ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट छोटी है, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट बड़ी हो जाती है। जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बड़ी होती है वैसे वैसे प्रॉफिट ऑफ मार्जिन भी शायद बड़ा होता है, क्योंकि ट्रेडिंग जो है वो फास्ट रोटेटिंग आइटम्स के लिए किया जाता है। जैसे अभी होली आएगी तो आप देखोगे 3-4 दिन पहले से आसपास के, अपने घर के आसपास में धीरे धीरे लोगों के रंग की टपरियां या रंग के छोटे छोटे दुकान लगा के लोग बैठते हैं। वो सिर्फ होली के सेकेंड डे तक के, मतलब होली वंदन के दिन तक के वो सीमित रहता है। उसके बाद में आपको ये रंग वाले कभी नहीं दिखेंगे। संक्रांति के ही मौसम में आपको दिखेगा कि पतंग लगाने वाले या पतंग उड़ाने वाले लोग जो है वो बहुत जागरूक होते हैं, तो ऑब्वियसली मांझा और पतंग की जितनी भी दुकान है वो आपको उसी 10-15 दिन में दिखेगी। तो ये जो ट्रेडिंग है, ये ट्रेडिंग शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए होता है, फास्ट मूविंग आइटम्स के लिए होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसमें लागत कंपैरेटिवली कम होती है। बिजनेस में एक पर्टिकुलर सेटअप के साथ में आप काम करते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके घर के आसपास में दिनचा का कोई शोरूम है या दिनचा का कोई आउटलेट है, तो आप गाओगे कि वहां पे दिनचा का बोलो या नेचुरल्स का बोलो या जो भी ब्रांड आप बोलोगे, उस ब्रांड का एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स वहां मिलते हैं। So those are the people who are investing more and those are the people who think little more about the margins. इसमें और एक तीसरा कंसेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट, या जिसको हम बोलते हैं इंडस्ट्री। आप पाओगे कि इंडस्ट्री जो है वो लंबे समय के लिए लागत करती है। मैंने बहुत सालों से ऑब्जर्व किया है कि बिजनेस करने वाले लोग जो है वो भी अपने ब्रांड्स को शिफ्ट करते हैं। पिछले 2 साल में आपने देखा होगा कि घर के आसपास की आपकी शॉप जो है, दुकानें जो है, कुछ दुकानें पूरी तरह से बंद हो गई। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वाली जितनी दुकानें थी, उनकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा थी, तो ऑब्वियसली लंबे समय तक सस्टेन करना उनके लिए डिफिकल्ट था। तो वो शॉप शायद बंद हो गई, वो शॉप शायद किसी और बिजनेस में मॉडिफाई कर गई, या उन्होंने कंप्लीटली अपने कंसेप्ट को ही चेंज कर दिया। लेकिन इंडस्ट्रियल वाला जो लोग है या इंडस्ट्रियलिस्ट जितने भी लोग होते हैं, वो एक छोटा पौधा लगाते थे, बिगिन विद अ स्मॉल थिंग एंड ऑब्वियसली दे percolate it down for a longer period of time. They let the concept sink into it and they wait for lot of, लंबे समय तक इंतजार करते हैं।
जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट आपको पता है, मेड बी बजाज, मेड बी टाटा, मेड बी रिलायंस, मेड बी अदानी, मेड बी एनीबडी, मतलब अलग अलग टाइप के इंडस्ट्रियलिस्ट है। तो ऑटोमोबाइल से लेके तो फूड आइटम्स तक के, इवन पतंजलि के जो प्रोडक्ट्स है या मेडिसिनल प्रोडक्ट जो है, वहां तक के आप देखोगे तो लोग इंडस्ट्री सेटअप करते हैं। उसके लिए और ज्यादा बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट में या बड़े पैमाने पे आपको पैसे लगते हैं, इन्वेस्टमेंट लगता है। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ से 35 to 40 years of time, the concept of industry has also changed. क्योंकि आप देखोगे कि इंडस्ट्री में लगने वाले जितने भी छोटे आइटम्स हैं, मतलब हम अगर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या हम गाड़ी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो गाड़ी को लगने वाले जितने भी पार्ट्स है, आप पाओगे कि ये सारे के सारे जो पार्ट्स है, ऑब्वियसली ये पार्ट्स कोई और बनाता है, इसको एंसिलरीज कहते हैं। तो आप देखोगे कि हमारे ही महाराष्ट्र में आप पाओगे कि नागपुर, पुणे, मुंबई, औरंगाबाद, नासिक, धुले, ये जितने भी शहर हैं, मतलब B++ ग्रेड के जितने भी सिटीज है, ये सारी के सारी सिटीज में आप देखोगे कि इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए जितने भी बाकी के छोटे यूनिट्स है, वो सारे छोटे यूनिट्स बहुत बहुत ज्यादा संख्या में, एंड दीज यूनिट्स आर वेरी वंडरफुली फंक्शनिंग बिकॉज दे आर सपोर्टिंग द लार्जर इंडस्ट्री। तो ये जो यूनिट्स है, ये भी एंटरप्रेन्योरशिप का एक हिस्सा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हमेशा बोलता हूँ, आई गो टू दी पावर इंडस्ट्री ऑल्सो, आई गो टू, अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लेते हैं, तो हम ये बोलते हैं कि इट इज नॉट नेसेसरी ऑलवेज टू स्टार्ट अ बिग इंडस्ट्री, but it is essential to begin with a smaller one, and it is very very essential to think from here. आज से करीब 100 साल पहले जमशेदजी टाटा ने जब पहला स्टील का प्लांट लगाने की बात की है, शुरुआत की, तो लोगों ने उनको, मतलब यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि ऐसा हो सकता है क्या, इंडिया में हो सकता है क्या, इतने बड़े पैमाने पे कोई काम कर सकता है क्या। So many number of people started thinking and talking about so many number of things, but very strongly he believed in himself, and he believed and he very strongly thought about, मतलब हम ये मान के चलेंगे कि आज जो हमारे सेशन है, इस सेशन की मैं पूर्व तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। इसके आगे का जो सेशन है, दैट सेशन विल बी प्योरली ऑन गोल सेटिंग, एंड दैट सेशन विल बी प्योरली ऑन फोकसिंग ऑन बिजनेस विद गोल सेटिंग। तो यू नीड टू आइडेंटिफाई which area you would like to work in, और ये करने के पहले you need to identify really do you wish to enter into business or not. अब हम commonly बोलते हैं, we fortunately are psychologists, so हम लोगों के thought process का analysis या लोगों के behavior का analysis करने की शुरुआत करते हैं, मतलब करते ही हैं। तो हम ये बोलते हैं कि those people who wake up in the morning on their own, अपने आप से जो उठते हैं, वो लोग अगर बिजनेस में या इंडस्ट्री में या एंटरप्रेन्योरशिप में जाते हैं तो ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। जिनको उठाना पड़ता है, वो लोग जॉब में ज्यादा बेहतर काम कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि सबसे पहला तो ये हमने डिफाइन करना है, ये हमने समझना है कि वेदर मैंने बिजनेस करना चाहिए या मैंने जॉब करना चाहिए, या मैंने जॉब करके फिर बिजनेस करना चाहिए, या एंटरप्रेन्योरशिप का या अपना खुद का कोई काम शुरू करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट अगर आपके समझ में आती है तो इट बिकम्स लिटिल इजियर, राइट। क्या आसान होगा कि ये पहले सोचना कि मुझे बिजनेस शुरू करना है या मुझे कहीं जॉब करना है, whether I really want to do business or I wish to enter into a job। ये करने के लिए आपको अपना खुद का एनालिसिस करने की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। और एंटरप्रेन्योरशिप डजंट मीन स्टार्टिंग बिजनेस ओनली, ठीक है ना। एंटरप्रेन्योरशिप का थोड़ा सा कंसेप्ट जो है वो डिफरेंट है। एंटरप्रेन्योरशिप ये बोलता है, मतलब द वर्ड एंटरप्रेन्योरशिप सेज टू गिव एम्प्लॉयमेंट टू समबडी। तो एंटरप्रेन्योरशिप के हम 4 पार्ट करेंगे। सबसे पहला जो है इंडस्ट्री के 4 पार्ट जैसे हम करते हैं, वैसे एंटरप्रेन्योरशिप के 4 पार्ट करेंगे। नंबर 1, यू एंटर इनटू प्रोडक्शन। आप कुछ मैन्युफैक्चरिंग करते हो। क्या मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो? कुछ भी, एनीथिंग, may it be food items, may it be something you can supplement to a larger industry, कुछ भी, मतलब छोटी सी चीज भी अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, that is also called as an entrepreneurship। नंबर 2, सर्विस ओरिएंटेशन या सर्विस इंडस्ट्री जिसको हम बोलते हैं।
तो किसी भी प्रकार के ऐसे बिजनेस या किसी भी प्रकार की ऐसे काम जो दूसरे काम को या दूसरे के काम को सपोर्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा हम सब कपड़े सिलाते हैं, हम किसी टेलर से कपड़े सिलाते हैं। मेल्स ऑब्वियसली टेलर के पास जाएंगे, फीमेल जो है वो बुटीक में जाएंगे, तो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ बिजनेस, लेकिन दैट इज समथिंग विच इज टर्म्ड एज सर्विस. You are offering your services, you are offering your expertise, or you are offering something to those people who need it. एग्जाम्पल के रूप में पिछले 2 साल में बहुत सारे किचन, बहुत सारे होम आइटम्स या फूड आइटम्स जो है रेडीली अवेलेबल होने लगे। मतलब जहां मैं रहता हूं वहां के आसपास में करीब 1.5 किलोमीटर के एरिया में इतने सारे फूड आइटम्स के दुकानें खुल गई हैं जो बना बना के लोगों को खिलाते हैं, फ्रेश खिलाते हैं। ऑब्वियसली इट इज अ सर्विस। तो पहला जो है दैट इज मैन्युफैक्चरिंग, सेकंड जो है मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग, ऑब्वियसली पैकेज प्रोडक्ट इसको हम बोल सकते हैं। नंबर सेकंड जो है दैट इज सर्विस। तीसरा जो है ये सर्विस का ही एक्सटेंशन है, बट दीज आर बेसिकली स्मॉल सर्विस और सिंपल सर्विसेज बीइंग प्रोवाइडेड एट होम। फॉर एग्जांपल आपके प्लम्बिंग हो गया, आपके इलेक्ट्रिशियंस हो गए, है ना। ये सारी जो चीजें, ये सारी के सारी चीजें जो है एसोसिएट करती है अल्टीमेटली लोगों के काम को आसान करने के लिए। बिलीव मी और नॉट, हमारी साइकिल या हमारी कार या हमारी स्कूटर पंचर हो जाती है तो हम खुद घर में बैठ के भी उसको रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। हम खुद घर में पंप लाके उसमें हवा भी भर सकते हैं और उसको कंप्लीटली रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम किसके पास जाते हैं? वो पंचर वाले के पास जाते हैं। पंचर वाला के नाम से एक फ्रेंचाइजी खुली है। अगर आप नागपुर शहर के पंचशील स्क्वायर में जाओगे तो वहां का जो पेट्रोल पंप है, उस पेट्रोल पंप पे आपको दिखेगा पंचर वाला के नाम से एक फ्रेंचाइजी खुली है, जो शायद मुंबई पुणे में ऑपरेट करती है, हैदराबाद बैंगलोर में ऑपरेट करती है। ये फ्रेंचाइजी दी जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सर्विस के एसोसिएटेड पार्ट्स हैं, ये हम खुद नहीं कर सकते, उसको हम अपलोड करते हैं या उसको हम डेडिकेट करते हैं या उसको हम किसी और को देते हैं। सो वी एक्चुअली एवरीबडी, मतलब यहाँ पे जितना भी ग्रुप साइज बैठा हुआ है, हम सभी लोग अपने काम को अपलोड करने के लिए किसी और के साथ में उसको शेयर करते हैं। तो हम अपने काम को आसान करने के लिए किसी और को काम देते हैं, वो हमारा काम करता है, हम उसको पैसे देते हैं। And ultimately, business is all the way, entrepreneurship is all the way, demand and supply. चौथे जो टाइप का entrepreneurship है, that entrepreneurship basically associates with something new, creating something new and different. पिछले करीब 10 साल से या 12 साल से आप देख रहे होंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जबरदस्त डिमांड है। आप पाओगे कि इवन बजाज की जो चेतक अभी नई आई है इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी जो है, that EVs have grown to a great extent. और छोटी छोटी कंपनियां, मतलब दिल्ली की, लुधियाना की, पंजाब की, हरियाणा की छोटी छोटी कंपनियां जो है वो अपने अपने प्रोडक्ट्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल में, मतलब इवन साइकिल्स को या बाइसिकल को इलेक्ट्रिक व्हीकल के कन्वर्ट करके अल्टीमेटली मार्केट में लाकर उसको बेच रही। तो 10 साल पहले तक ये कंसेप्ट नहीं थी, या थी भी तो बहुत कम थी। आई स्टिल रिमेंबर एक छोटी सी कार हुआ करती थी जो बैंगलोर मैन्युफैक्चर्ड कार थी, रेवा के नाम से। 2 सीटर कार थी, छोटी सी कॉम्पैक्ट कार, 2 सीटर कार। यू कैन इमेजिन, शायद नागपुर शहर में किसी एक डॉक्टर के पास नहीं वो गाड़ी मैंने आज से 10, 12 साल, 15 साल पहले देखी थी। वन वेरी सिंगल कॉम्पैक्ट व्हीकल। आज आप महिंद्रा के टैक्सीज आप देख सकते हैं, रैम्पेंटली दे आर बीइंग सोल्ड। तो मुझे लगता है कि कंसेप्ट को लाना और कंसेप्ट के साथ में काम करके लोगों की डिमांड कैसी है उसको पहचान के उसको क्रिएट करना और उसको बढ़ावा देना, दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, पहला वाला जो है वो है इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग। सेकंड वाला जो है वो है प्रोडक्शन, या जिसको हम कहते हैं सर्विस इंडस्ट्री का प्रोडक्शन। तीसरा वाला जो है सप्लीमेंटिंग द सर्विस इंडस्ट्री एज वेल। और चौथा वाला जो है गिविंग न्यू आइडियाज एंड न्यू कंसेप्ट। एक एंटरप्रेन्योर जिसको हम लोग आज की डेट में स्टार्टअप बोलते हैं, एक एंटरप्रेन्योर या एक ऐसा व्यक्ति जो स्टार्टअप करना चाहता है, उसके लिए गवर्नमेंट ही नहीं, एवरीबडी इज गोइंग टू सपोर्ट हिम और सपोर्ट हर। देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। वी एज अ कम्युनिटी और वी एज अ सोसाइटी वांट
n number of people to enter into business so that more amount of employment can be generated. अभी ऐसा सीन है कि हिंदुस्तान में अगर 140 करोड़ लोग हैं, 140 प्लस अगर हिंदुस्तान में है, तो उसमें से बहुत कम एंटरप्रेन्योर या बहुत कम बिजनेस वाले लोग हमको दिखाई देते हैं। मैक्सिमम पीपल जो है वो अपनी जनरेशन से आए हुए बिजनेस को सस्टेन करने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम एंटरप्रेन्योर, पिछले 2 साल की बात छोड़ दीजिए, लेकिन बहुत कम एंटरप्रेन्योर जो है वो हमको देखने को मिले, जिनको हम फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर कहते हैं। ठीक है, हमारे नागपुर शहर में हम देखेंगे तो 4 MIDCs हैं। ठीक है, ये जो MIDCs है उसमें से सबसे पहली MIDC हमारी, या जिसको हम टॉप क्लास या स्टार रेटेड MIDC बोलते हैं, या टॉप क्लास या स्टार रेटेड मैन्युफैक्चरिंग हब बोलते हैं, दैट इज ऑब्वियसली निहान, दैट इज एन SEZ, and it's a very different kind of setup wherein big industries and huge industries are coming in, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। हमारा दूसरा जो सेटअप है दैट इज बुट्टीबोरी MIDC, हमारा तीसरा जो सेटअप है दैट इज हिंगना MIDC, और हमारा चौथा जो सेटअप है वो पार्टी के साइड में दैट इज ऑल्सो MIDC। तो 4 MIDCs हमारे आसपास में। उसके बावजूद भी अभी कुछ दिन पहले हमारी बात चल रही थी, 3 दिन पहले, टाटा के कुछ टॉप लेवल मैनेजर्स के साथ में वी वर डिस्कसिंग कि व्हाई नॉट नागपुर इज गेटिंग दैट काइंड ऑफ इंडस्ट्री व्हिच नासिक हैज, व्हिच औरंगाबाद हैज, व्हिच परहैप्स पुणे हैज एंड व्हिच मुंबई हैज। तो चिंतन का विषय था, विचार कर रहे थे कि भाई हमारे यहाँ पे लोग क्यों नहीं आ रहे, बाहर से बड़े लोग नहीं आ रहे, और यहाँ के छोटे लोग भी जो है वो और ज्यादा पैमाने पे काम करने को उत्सुक या उत्साही क्यों नहीं है। Tomorrow afternoon, after the 3 sessions are over, you are going to meet a person, and that person is a first generation entrepreneur. She has began her setup 2 years before, and she is fortunately an alumni of Srimati Bindani Mahila Mahavidyalaya. आप उनसे रूबरू मिलेंगे और आप जानेंगे कि एक नया सेटअप शुरू करने के लिए या एक नया काम शुरू करने के लिए पैसे की जरूरत थोड़ी बहुत पड़ती है, लेकिन विश और विल की आवश्यकता है। ठीक है, अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो सामने आती है, जो हमारे बेसिक वायर का कंसेप्ट है, जिसको हम बोलते हैं एटीट्यूडिनल डेवलपमेंट, जिसको हम बोलते हैं दृष्टिकोणात्मक बदलाव। आपके बेसिक थॉट प्रोसेस में ही अगर चेंज नहीं होगा तो यू विल ऑलवेज रिमेन एन एम्प्लॉय, नॉट फिजिकली बट मेंटली ऑफ समबडी एल्स। आप अपने आप का काम शुरू करने की जगह पे आप किसी दूसरे की ही नौकरी या दूसरे की ही चाकरी कंटिन्यूसली या परमानेंटली करते रहोगे, ऐसा मुझे लगता है। आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव दैट चेंजिंग एटीट्यूड विल चेंज एवरीथिंग। तो एटीट्यूड में चेंज कैसे होगा? ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप का एटीट्यूड आपके अंदर कैसे आएगा? मैं आपको 3 सेंटेंसेस अभी आज दे रहा हूं। ये 3 सेंटेंसेस जो उसको एलैबोरेट करके मैं आपको एक्सप्लेन करके दे रहा हूं, उसमें से आपके जो भी सवाल दिमाग में आते निकलते हैं उनके ऊपर हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे। चेंज के लिए सबसे पहला स्टेप, चेंज इट इफ यू कैन। ऐसी वो हर चीज जो आप बदलना चाहते हो उसको इमीडिएटली बदल दीजिए, इंस्टेंटली, स्पॉन्टेनियसली, इमीडिएटली बदल दीजिए। कौन कौन सी चीजें आप बदलना चाहते हो? या यू कैन इनफैक्ट इंटरेक्ट विथ मी, अपना माइक ऑन करके आप बात कर सकते हो। कौन सी चीजें आप बदलना चाहते हो? व्हाट थिंग्स यू वांट टू चेंज? या मे बी गोपिका, आस्था, प्रियंका, मनीष, you're there, anybody, anything and everything, whatever you want to change, immediately change it if you can. तो हमारा पहला 3 सेंटेंस क्या बोलता है? Change it if you can, right? I am writing down in the chat box, change it if you can. This is the first thing if you want to develop an attitude of an entrepreneur. Okay, so change it if you can. Second thing, those things which you cannot change perhaps, ऐसी वो सारी चीजें जो हम नहीं बदल सकते, accept it if you cannot. ठीक है, तो ऐसी वो सारी चीजें जो हम नहीं बदल सकते उन सारी चीजों को हम एक्सेप्ट करेंगे और उसके ऊपर काम करने की शुरुआत करेंगे। और वो सारी चीजें जो हम बदल सकते हैं या बदलना चाहते हैं उन चीजों को इमीडिएटली, स्पॉन्टेनियसली हम बदल देंगे। जोशी मैडम ने मुझसे कहा कि सर आप हिंदी में बात कीजिए, लोगों को शायद कुछ लोगों को इंग्लिश में
पूरी तरह से बात नहीं समझ में आए जो आप बोल रहे हो, पॉसिबली यस, मुझे लगता है कि ये थॉट प्रोसेस से ही चेंज की शुरुआत होती है। मुझे इंग्लिश नहीं आता, बड़ा प्रॉब्लम है। कहाँ प्रॉब्लम है? केजी से लेके यूजी तक के कंटिन्यूसली इंग्लिश में तो पढ़े हो आप, और किसी एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए शायद इंग्लिश की नहीं, आपके बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स की आपको जरूरत पड़ती है। यू नीड टू इंटरेक्ट विद पीपल, यू नीड टू टॉक टू पीपल, वो होगा तभी तो आप लोगों तक पहुंच पाओगे। तो ये थॉट प्रोसेस में ही हमारे चेंज अगर होगा तभी तो शुरुआत होगी। नंबर एक। नंबर दो, बहुत इंपॉर्टेंट, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीबॉडी एल्स। यू आर यूनिक, यू आर इंडिविजुअल, इज इंडिविजुअलिटी इज यूनिक, यू आर समथिंग डिफरेंट, यू आर समथिंग यूनिक, अलग ही हो। बिलीव मी, 280 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, लीव असाइड देयर प्रायोरिटीज। 280 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, मैं यहाँ देख रहा हूँ करीब 50-60 लोगों के आसपास में लोगों ने ज्वाइन किया था। एंड आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव कि यही लोग जो है वही अपने दृष्टिकोण में बदलाव ला सकते हैं, बिकॉज दे वेरी स्ट्रांगली बिलीव। मे बी जैसे आस्था ने बात की कि सर आई वांटेड टू अटेंड द सेशंस बट आई हैव माय क्लास फ्रॉम 10 to 12, मैं क्या करूं? तो पॉसिबिलिटी है कि आप बाद में भी इसको देख सकते हो। तो यस, वी हैव टू सी द पॉसिबिलिटी विद इन आवर ओन सेल्फ rather than comparing ourselves with somebody else। किसी दूसरे को कंपेयर करने की जगह पे अगर हम अपने आप में, अगर हम अपने खुद के साथ में अगर हम बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, तो डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीबॉडी एल्स। ठीक है, यू आर यूनिक, you are confident, and you are an individual who has all the capacities and capabilities to work, to function as an entrepreneur। ये बिलीव के साथ में काम करने की आप शुरुआत करोगे तो अल्टीमेटली यू विल लैंड अप वेयर यू हैव थॉट ऑफ। नंबर तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट, एंटर द पूल, डोंट सिट ऑन द पूल एंड जस्ट वॉच पीपल डूइंग इट। पिछले करीब करीब 20 साल से मैं बहुत यंग लोगों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मतलब आपके एज ग्रुप से लेके करीब और 10 साल आगे, मतलब मे बी से फ्रॉम 16 to 26 या 30, इस एज ग्रुप के लोगों को मैं बहुत कीनली ऑब्जर्व कर रहा हूँ। एंड आई एम वेरी स्ट्रांगली सीइंग एंड सेंसिंग समथिंग व्हिच सेज कि लोग बाहर बैठ के तमाशा देखते हैं, लोग बाहर बैठ के इंतजार करते हैं। पीपल वेट फॉर समबडी एल्स टू चेंज रादर देन चेंजिंग देमसेल्फ। तो एंटरप्रेन्योर अच्छा वही होता है जो अपने आप को या अपने आप में बदलाव लाके चीजों को बदलने की कोशिश करता है। He doesn't wait for anybody else to change and then think about the change within himself. He starts changing within himself. इसीलिए मैंने कहा कि अच्छा एंटरप्रेन्योर वही होगा जो अपने आप से सुबह उठता है और अपने सारे काम करता है, शायद वो आगे की सोचता है। तो एक बेसिक एंटरप्रेन्योरशिप में ये 3 क्वालिटीज होना बहुत जरूरी है जो आपके एटीट्यूड में, एंटरप्रेन्योरशिप वाली एटीट्यूड में चेंज ला सकते हैं। कौन कौन से 3? नंबर 1, चेंज करो, जो चेंज करना चाहते हो इमीडिएटली या उसको एक्सेप्ट करो। नंबर 2, think yourself as unique individual who has all the capacities and abilities and who can grow and who can work on lot of things। नंबर 3, enter the pool, काम करने की शुरुआत करो। सक्सेसफुल वही होता है या अच्छा एंटरप्रेन्योर वही बन सकता है जो काम करेगा। आई हैव सीन एन नंबर ऑफ पीपल इनटू एमआईडीसी। एमआईडीसी में बहुत छोटे छोटे यूनिट्स हैं और वो सारे यूनिट्स में मैंने देखा है कि लोग बहुत मेहनत करते हैं, सही डायरेक्शन में शायद नहीं करते, या ऐसा भी हो सकता है कि सही उनको इनपुट्स नहीं मिलते हैं एंड दे फेल, बट स्टिल दे कीप ऑन पुटिंग इन एफर्ट्स, कीप ऑन पुटिंग इन एफर्ट्स। वो मेहनत करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, एंड दे आर वेरी हैप्पी इन व्हाटएवर दे आर डूइंग, दे आर एंजॉयिंग इट। सो चौथी एक और इंपॉर्टेंट बात जो प्री रिक्विजिट है बिजनेस का या एंटरप्रेन्योरशिप का, वो कहता है कि एंजॉय व्हाटएवर यू आर डूइंग। ऐसा बोलते हैं हम कि स्टार्ट डूइंग व्हाटएवर यू आर लविंग। जिस चीज से प्यार करते हो वो काम करने की शुरुआत आप कर दो, जो काम से आप प्यार करते हो ना, स्टार्ट डूइंग व्हाटएवर यू आर लविंग। तो जो आपके इंटरेस्ट एरियाज है, जो जहाँ पे आप ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हो, वो काम करने की आप शुरुआत कर दो, रादर देन व्हाट पीपल विल थिंक, ये सोचने की जगह पे आप अपने इंटरेस्ट एरिया को आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर काम करने की शुरुआत करो। ऐसा बोला जाता है एक, या फिर उसका उल्टा भी होता है। कैसा उल्टा होता है? कि जो काम आप कर रहे हो अभी उसके साथ में प्यार करने की शुरुआत करो।
Start loving whatever you are doing. So either do whatever you love to do or start loving whatever you're doing. तो अभी आप जो भी कोर्स कर रहे हो, अभी आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, अभी आप जो कुछ भी एक्सपर्टीज हासिल करने की कोशिश कर रहे हो, ये सारी की सारी चीजें जो है उसमें कोई एक आपका इंटरेस्ट एरिया आइडेंटिफाई करो. Understand and identify one particular area of your interest and put in all your efforts to develop it. ये कैसा है, मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल देता हूं. अभी पिछले करीब 20-25 दिन से एक बच्चा जो है, लड़का आप ही की एज ग्रुप का है, वो मेरे पास में रेगुलर आ रहा है. वो फ्लूट बजाता है, बांसुरी वादक है, दुविधा में है, वो साथ साथ में पढ़ भी रहा है. ही इज हैविंग एन एक्सपर्टीज इनटू बांसुरी बजाने में, उसकी बहुत अच्छी मास्टरी है, उसका म्यूजिक का ज्ञान जो है, उसका म्यूजिक का सेंस जो है वो बहुत अच्छा है. लेकिन अभी वो दुविधा में है कि क्या जो कोर्स मैंने लिया है हाथ में वो कोर्स कंप्लीट करूं या बांसुरी वादन में अपना पूरा समय लगा दूं. वो नागपुर में अभी फिलहाल नहीं रहता, वो कहीं और सीखने के लिए गया हुआ, तो वो उसके गुरुजी के पास रहता है. तो ये नागपुर यूनिवर्सिटी का ये कोर्स करना मेरे लिए कंपलसरी है क्या, वो बार बार पूछता है. अब जो कुछ भी वो कर रहा है ना, मान लो BCA, BSc, BBA, जो कुछ भी कोर्स वो कर रहा है, वो डिग्री उसको मिल जाएगी, लेकिन अगर उसमें मजा नहीं आ रहा है, उसको एक्सपर्टीज नहीं है, सो ही विल नॉट बी एबल टू फंक्शन इन दैट एरिया, इन दैट डोमेन. लेकिन जिसमें उसको इंटरेस्ट है वो अगर काम वो करता रहे कंटिन्यूअसली, नाउ हियर कम्स इन रोल ऑफ टू पीपल. एंटरप्रेन्योरशिप का एक और प्री रिक्विजिट है. नंबर 1, यू एज एन इंडिविजुअल हु इज कॉन्फिडेंट अबाउट हिमसेल्फ or herself, and your family as a group or a team who is there to support you, who is there to help you out. ये अल्टीमेटली हेल्प कब करेंगे, जब आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अच्छा हो. फॉर एग्जाम्पल, मैंने ऐसे कई स्टूडेंट्स को देखा है जो काम करते करते पढ़ाई कर रहे हैं. दे आर वर्किंग साइमल्टेनियसली, दे आर स्टडिंग. तो पढ़ाई जो है वो उनके लिए थोड़ा सा सेकेंडरी है. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है वो काम करना है. काम करना मतलब नॉट ओनली ज्वाइनिंग अ जॉब, बट काम करने का मतलब जो है वो ऑब्वियसली अपना खुद का भी काम शुरू कर चुके हैं. आई एम गिविंग एन एग्जांपल टू यू. हमारा एक फ्रेंड है जिसने अपना काम जो है वो पढ़ाई के साथ साथ शुरू किया. उसने अपनी छोटा सा यूनिट जो है, छोटी सी इंडस्ट्री जो है वो अपना पढ़ाई के साथ साथ शुरू किया. हमारे महाविद्यालय में कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना बुटीक का या जिन्होंने अपना टेलरिंग का काम जो है वो पढ़ाई करते करते शुरू किया है. मतलब वो साथ साथ में डिग्री भी ले रहे हैं और साथ साथ में अपना काम भी कर रहे हैं, है ना. डिग्री में 70%, 75%, 60% तक के मिलते हैं. दे आर वेरी हैप्पी एंड साइमल्टेनियसली दे आर वर्किंग अलोंग विद टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर. ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस मैं समझता हूँ बहुत जरूरी है. कॉमनली हम ये समझते हैं, हमारे एजुकेशन सिस्टम में या हमारे सोशल स्ट्रक्चर में ऐसा बोला जाता है कि पहले पढ़ाई पूरी करो अपनी, उसके बाद सोचो क्या करना है. पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया भर में, पूरी दुनिया भर में दोनों चीजें साथ साथ में लोग कर रहे हैं. मैं तो उल्टा इसके एक कदम आगे जाके बोलता हूं कि लोग अपने एजुकेशन को सेकेंडरी मानते हैं. यूरोपियन कंट्रीज में और अमेरिका में लोग अपने एजुकेशन को सेकेंडरी मानते हैं. फॉर्चुनेट इनफ हमारे सोशल स्ट्रक्चर में एजुकेशन को प्राइमरी या पहला दर्जा दिया जाता है. लेकिन अभी वो थॉट जो है, उस थॉट को थोड़ा सा हमें मॉडिफाई करने की जरूरत है. एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आपको दोनों चीजें साथ साथ में करनी पड़ेगी. अपना खुद का काम, जो काम आप सोचते हो कि करना चाहिए, और साथ साथ में पढ़ाई जो आप अभी ऑलरेडी कर रहे हो उसको कंटिन्यू करके उसको खत्म करना, एंड करना. उसमें से जितनी मैक्सिमम चीजें आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, खींच सकते हो, उतनी मैक्सिमम चीजें खींचना और उसका इम्प्लीमेंटेशन अपने काम में करना बहुत जरूरी है. फिर लोग मुझसे पूछते हैं, लोग आते हैं मुझसे पूछते हैं कि सर मुझे बताइए, अभी मेरा BA पूरा हो गया, BBA पूरा हो गया, BCA पूरा हो गया, अब मैंने क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू. ठीक है ना. तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ भी ग्रेजुएशन आपने किया है, उस ग्रेजुएशन के जो आपके सब्जेक्ट्स रहे हैं, BA लेवल पे आपके जो भी सब्जेक्ट्स होंगे, मे बी साइकोलॉजी होगा, इकोनॉमिक्स होगा, पॉलिटिकल साइंस होगा, ज्योग्राफी होगा, हिस्ट्री होगा, जो भी आपके सब्जेक्ट रहे, उसमें से आपके इंटरेस्ट का सब्जेक्ट कौन सा, उसको आइडेंटिफाई कीजिए.
वो अगर आइडेंटिफाई हो जाता है तो इट बिकम्स लिटिल इजी फॉर यू टू स्टार्ट पुटिंग इन एफर्ट्स इनटू दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मुझे साइकोलॉजी में या लोगों के बिहेवियर का एनालिसिस करने में बहुत मजा पहले से आता था। I was into training when I was into pharmaceuticals. I was into training. I was into management. And लोगों के साथ काम करते करते वो क्यों कर रहे हैं ऐसा, ये समझने की शुरुआत मैंने की। और शायद इसीलिए शायद ये ज्योति आप बात कर सकते हो। ये बोलो ज्योति, आपका ऑडियो ऑन करो, कुछ पूछना है तो आपको पूछ लो, इमीडिएटली अर्जेंसी हो तो। नो सर। हाँ पूछो। नो सर। ओके, गलती से हो गया हाथ ऊपर, ठीक है कोई बात नहीं। तो शायद इसीलिए जो मैंने इंटरेस्ट एरिया था उसके ऊपर काम करने की शुरुआत की, और शायद इसीलिए मैं कंसल्टेशन भी करता हूँ, मैं काउंसलिंग भी करता हूँ। मतलब जो काम मैं कॉलेज में रह के कर सकता हूँ उसके अलावा बहुत सारे बाकी के काम जो है वो मैं साथ साथ में करता हूँ। सो आई वर्क इन बोथ वेज। जिसमें मुझे मजा आता है वो भी मैं करता हूँ, और जो मेरा काम है प्राइमरी वो भी मैं करता हूँ। तो दोनों चीजें आई एम डूइंग। मैं आपको इसलिए ये जो पूरी एक्टिविटी हम 6 दिन लेने वाले हैं, ये सारी एक्टिविटी के पीछे का जो पर्पज है वो पर्पज ये कि जितने भी ये 200-250-300 लोग जिन्होंने अपना नाम दर्ज कराया, रजिस्ट्रेशन कराया, अगर उन्होंने ये हमारी बातें 6 दिन के लिए सुनी और उसमें से 2 एंटरप्रेन्योर भी बने या 2 लोगों ने भी अपना खुद का काम करने की शुरुआत की, तो मुझे लगता है कि हमारी ये पूरी एक्सरसाइज, वायर की जो एक्सरसाइज है, राइट। अब एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत सारे लोगों के बहुत सारे अलग अलग विचार हैं, जैसे और बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं। जैसे मिडकॉन नाम की एक इंस्टीट्यूशन है, वो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट की अपॉइंट की हुई इंस्टीट्यूशन है। वो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए काम करती है, लोगों को ट्रेनिंग भी देती है, लोगों को सपोर्ट भी करती है। जैसे एमएसएमई है, ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है। हाँ सुमित, गलती से हुआ या पूछना चाहते हो, बोलो। सुमित, आर यू देयर? गलती से हुआ सर। You want to speak something? गलती से हुआ सर। हाँ सुमित बोलो। सर गलती से बटन दब गया। अच्छा, गलती से बटन दब गया, ठीक है कोई बात नहीं, ओके फाइन। तो हमारी एमएसएमई है और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमारे एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलपमेंट का काम करती है। दीज आर ऑलमोस्ट ऑल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस या गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूशंस। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे 2 टाइप के प्रोग्राम चल रहे हैं। वन इज नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड सेकंड वन इज स्टेट स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये जो कॉर्पोरेशन है, ये कॉर्पोरेशन आपके स्किल्स को अपग्रेड करने का काम करते हैं, and they help you out to identify your interest area and start working on that. जैसे किसी जमाने में, आई स्टिल रिमेम्बर, किसी जमाने में आईटीआई बहुत प्रिडोमिनेंटली लोगों के लिए काम करता था कि जॉब के लिए, स्किल्ड या स्किलफुल जॉब के लिए ट्रेनिंग देने का काम आईटीआई करता था। फिर पॉलिटेक्निक या गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आए, उसके बाद में प्राइवेट कॉलेजेस आए, और अपने अपने स्किल सेट को आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर काम करने की शुरुआत जो है वो लोगों ने की। मैं हमेशा से एग्जांपल देता आया हूं कि जिन लोगों को मशीन में इंटरेस्ट है, ठीक है ना, जिन लोगों को मशीन में इंटरेस्ट है, उन लोगों ने उस मशीन के अंदर में घुस के जाना चाहिए। मतलब दे नीड टू एंटर इनटू दैट मशीन टू सच एन एक्सटेंड wherein they would be able to not only repair it but maybe manufacture the machine to a certain extent. जिन लोगों को लोगों के बिहेवियर के साथ या लैंग्वेज के साथ या किसी भी सब्जेक्ट के, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बार बार सब्जेक्ट एक्सपर्टीज होना बहुत जरूरी है। और ये सब्जेक्ट एक्सपर्टीज तभी आएगी जब आप थोड़ा सा किताबों से हटके लोगों से बात करोगे, लोगों से बातचीत करोगे। जब लोगों से इंटरेक्शन करोगे ना, तभी आपको समझ में आएगा कि लोगों की डिमांड क्या है, लोग क्या चाहते हैं। व्हाट डू पीपल वांट, व्हाट डू दे रिक्वायर, व्हाट डू दे नीड। तो एंटरप्रेन्योरशिप की एक और प्रीरिक्विजिट है, मार्केट में क्या चल रहा है या मार्केट में क्या चाहिए। मार्केट मतलब क्या, तो लोग। मार्केट किसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स के टर्म्स में? मार्केट कैन बी डिफाइंड एज वेयर देयर इज अ डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड किस चीज की है और सप्लाई किस चीज का करना है, ये आइडेंटिफाई करने का काम भी एंटरप्रेन्योर बहुत बखूबी से करता है। So these are some of the qualities of an entrepreneur which are required and desired by you as individuals
who want to start up their own set. अपना खुद का काम शुरू करने के लिए मुझे लगता है यहाँ से आपने सोचने की शुरुआत करनी चाहिए. ठीक है, क्या क्या बोला मैंने, फिर से एक बार रिपीट करते हैं. Will anybody be able to repeat whatever I have said? 4 type of entrepreneurship I have told. 3 different concepts I have told. And I have also talked about the various qualities or the prerequisites of a business of an entrepreneur. कौन बता सकता है मुझे ये सारी चीजें? Anybody of you? Anyone from your end? पूनम, इशिका, ज्योति, इनवास, मनीष, सुमित, गोपिका, नेहा. See, it needs to be an interactive session. अगर मैं ये ऑफलाइन सेशन लेता तो शायद आप लोग सामने बैठ के मेरे साथ बात करते थे. तो अगर ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन है, तो भी हम बात तो कर ही सकते, बिकॉज यू कैन श्योरली इंटरेक्ट विद मी. या विल एनीबडी बी एबल टू इंटरेक्ट? बात कर सकते हैं, बता सकते हैं. Yes, sir. Will you be able to tell me? Sir, I don't know that 100% I'm gonna tell you or not, but I will do my best to interact with you. ठीक है, जितना आपको समझ में आया, जितना आपके कंसेप्ट में गया, दिमाग में गया, उतनी सारी चीजें बता सकते हो मुझे? Sure, sir. Why not? प्लीज. Sir, actually, first entrepreneurship. You told us about the three things: the trading, business, and industry. Yeah. Trading means the small level, small investment, and for a short timing. And business about the large scale, big investment, and about a long time and exclusive things which you sell in a market. Right. And industry is about long time investment, like sapling, जो आप लगाते हो लेकिन धीरे धीरे करके उसको बड़ा करते जाते हो. जी, नर्चर करते हो and you enjoy the fruits after maybe 5, 7, 10 years of time. Very good. आगे. और सर, इंटर्नशिप के बारे में जब अपने इंडस्ट्री के बारे में बताया तो आपने 4 वेज और उसके बताए, लाइक अ मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, सपोर्टिंग वर्क, सर्विस, supplementary of service, and the new ideas to develop your business. Okay. That concept. Great. बहुत बढ़िया. What else? और सर फिर आपने फिर इंडिविजुअलिटी के बारे में बताया कि जो आप हो, आप क्या कर सकते हो और क्या आप में क्षमता है करने की. Right. Very वो true. Great. क्या पॉसिबिलिटीज है. कंपेयर मत करो खुद को दूसरों से, कॉन्फिडेंट रहो, जो कर सकते हो वो करो, और जो ठाना है वो करने की कोशिश तो करो. Yeah, very good. Anybody else? हाँ, आज तो और कुछ बोलना चाहते हो? Anything you want to say? और सर, इंटर्नशिप इज लाइक टू, या तो आप उसको चेंज करो, और अगर नहीं चेंज कर सकते हो तो जो आप कर रहे हो उसको एक्सेप्ट करो, और जो चीज आप कर रहे हो उसे एंजॉय करो. Right. Don't overthink about that. What are people thinking about you? Just be confident and identify that who you are and what you want to do. Thank you, sir. Correct. Very rightly said. इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं. आपका जो अगला सेशन है वो सेशन प्योरली इसी से एसोसिएटेड रहने वाला है. यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मे बी सेटिंग अप ऑफ योर स्पेसिफिक टारगेट्स और गोल्स एंड यूटिलाइजिंग द बेस्ट रिसोर्सेज अवेलेबल टू यू. मैं सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ. We had been recently to a food joint, which is a chain in Pune, and now they have started. ये जो है ये मिसल पाव करके है, नागपुर में ही 2 जगह पे अलग अलग लगे हैं. एंड स्लोली एंड स्टडी द कंसेप्ट इज ग्रोइंग. आप VNIT का जो सेकंड गेट है, SBI की जो ब्रांच है VNIT वाली, वहां से उस गेट से अगर आप जाओगे और वो जो दोनों तरफा रोड है, वो पूरे रोड पे अगर आप शाम को 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक के अगर आप एक चक्कर लगाते हो तो आपको समझ में आएगा जो मैं कह रहा हूं. अभी जिस चीज की डिमांड है, वो फुलफिल करने की हम कोशिश करेंगे. एंटरप्रेन्योरशिप में हमेशा ये बात ध्यान में रखेंगे कि वी आर नॉट इन्वेंटिंग समथिंग न्यू. बी श्योर अबाउट.
अगर वो क्वालिटी, वो एबिलिटी, वो स्किल सेट आपके पास में है जहां पे आप कुछ इन्वेंट करके लोगों तक पहुंचा सकते हो, वेल एंड गुड, नथिंग लाइक दैट। मैंने वो रेवा का एग्जांपल दिया आपको, बैटरी ऑपरेटेड छोटी गाड़ी का एग्जांपल दिया। लेकिन अगर वो नहीं है, मैंने करीब 6-7 साल पहले, 6-7 years बिफोर, आई हैव मेट विद एन फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, नहीं बोलूंगा मैं उसको, इन्वेंटर बोलूंगा, जिसने मोबाइल का बैटरी चार्जर, मोबाइल का चार्जर जो है वो जूते में लगाया था। मतलब आप चलोगे तो ऑटोमेटिकली बैटरी उसकी चार्ज होगी एंड ऑटोमेटिकली आपका जो मोबाइल है वो उसके साथ में चार्ज होगा। तो जेब में वायर के साथ में वो जूते के साथ कनेक्टेड है और आप चलते रहो, जितना चलोगे उतना आपकी बैटरी चार्ज होती रहेगी। यू डोंट हैव रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी टू चार्ज द मोबाइल। मोबाइल चार्जर, पुट मोबाइल चार्ज, डिफरेंट कंसेप्ट है, नया कंसेप्ट है। अगर लेकिन अगेन द क्वेश्चन मार्क कम्स इन, एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए और वर्केबल भी होना चाहिए। तो एंटरप्रेन्योरशिप में ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है कि ऐसी वो सारी चीजें जो लोग एक्सेप्ट करेंगे और वो कमर्शियलाइज हो पाएगा, तभी तो एंटरप्रेन्योरशिप आपकी चलेगी, तभी तो धंधा चलेगा, तभी तो बिजनेस चलेगा, तभी तो काम आप आगे कर पाओगे। आपने देखा होगा कि मैंने बहुत दिनों पहले, बहुत सालों पहले शायद, वो वाटर बबल के बारे में सुना था। आजकल अभी वाटर बॉटल नहीं, वाटर बबल आता है, ऐसा मैंने सुना था। कहाँ है वो? अभी तक तो नहीं आया। वाटर बबल का मतलब पानी का एक छोटा सा बॉल है ऐसे बॉल आप बॉक्स में रख के घूम सकते हो या कहीं भी उसको रख सकते हो। आपने वो बॉल मुंह में डाला कि वो पानी बन जाएगा एंड यू विल ड्रिंक वाटर और ईट वाटर। कंसेप्चुअली बहुत अच्छा लगता है, कंसेप्चुअली बहुत अच्छा लगता है। हम जानते हैं कि वाकई में वो बहुत अच्छा है, लेकिन उसको कमर्शियलाइज करने के लिए, उसको एक्चुअली काम में लाने के लिए, इट इज नॉट दैट इजी ना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, बहुत दिनों से मैं देख रहा हूं कि छोटे साइज के खाकरे, बड़े साइज का खाकरा आपने देखा, फूड आइटम बड़ा साइज का देखा हो, खाकरा बड़ा साइज का कैरी करना डिफिकल्ट होता है, तो छोटे साइज के इतने से छोटे छोटे डिब्बे में आते हैं। You can carry that box somewhere, anywhere, and you can eat it as and when you want to. You can eat that food, ready-made food, as and when you want to. मुझे ऐसा लगता है कि लोगों की क्या रिक्वायरमेंट है ये समझेंगे। पिछले लगभग 2.5 साल में स्विगी, जोमैटो जितने ज्यादा, मतलब अनबिलीवेबल नंबर ऑफ डिलीवरीज दे हैव डन इन द लास्ट 2.5 years of time, because that was the requirement, that was the need of the hour. That was in fact the demand which was generated maybe because of corona and the lockdown period. अब जैसे जैसे लॉकडाउन ओपन अप हो रहा है तो न्यू थिंग्स आर गोइंग टू कम अप, कंप्लीट ट्रेंड ऑफ बिजनेस इज गोइंग टू शिफ्ट। आपको हवाई जहाज छोड़ के सारी चीजें ऑनलाइन मिलना शुरू हो गई है। अब इमेजिन करके देखो, आज से 5 साल पहले ऐसा नहीं था, आज से 2.5 साल पहले ऐसा नहीं था। वी आरसेल्फ वेयर वेरी लिमिटेड और वी वेयर वेरी रिलक्टेंट टू कॉल द थिंग्स फ्रॉम सम ऑनलाइन सोर्सेस। अभी वो सारी चीजें जो ऑनलाइन हो गई हैं, एवरी मार्केट इज ऑनलाइन। आई एम जस्ट पुटिंग एन एग्जांपल टू यू ऑफ simple example of Byju's, and then I'll be putting forward to you all for the question answer. Byju's 3 साल पहले Byju's के लोग घर घर घूम के प्रोडक्ट बेचते थे कि सर ये हमारा एजुकेशनल प्रोडक्ट है, आपका बच्चा 8th में, 9th में, 10th में, हर चीज के लिए अलग अलग क्लासेस होंगे, अलग अलग उनके सब सेटअप होगा वगैरह वगैरह वगैरह। बहुत टाइम लगता था। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर एन पेरेंट टू परचेस इट। जैसे कोरोना आया, इट वॉज एन अपॉर्चुनिटी। एंटरप्रेन्योरशिप का लास्ट जो पार्ट है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इट वॉज एन अपॉर्चुनिटी for the people who were giving education through online, and they took up that opportunity and they, what I should say, materialized it. उन्होंने उसको सोना बनाया उस अपॉर्चुनिटी का, and they minted money like anything. ठीक है ना? और सिर्फ बायजूस नहीं, बायजूस जैसे ऐसे कितने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो एजुकेशन में आज बहुत प्रीडोमिनेंटली ऑपरेट कर रहे हैं, एंड दे आर वेरी हैप्पी एंड पीपल आर एंजॉयिंग इट, पीपल आर यूजिंग इट। आप खुद कई ऐसी साइट्स का ऑनलाइन यूज करते हो
जो कभी सुनी नहीं थी लेकिन आज उसको काम में ला रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यू नीड टू सी द अपॉर्चुनिटी बिकॉज अपॉर्चुनिटीज आर नेवर लॉस्ट। इफ यू डोंट ग्रैब इट समबडी एल्स विल डू। ठीक है ना? अरे आप खुद ही काम करना चाहते हो क्या अकेले? नहीं, जैसे आपके जैसे और 50, 100, 200, 500, 1000 लोग हैं, they are ready to eager to work. They may have the resources and they will immediately start, they'll immediately begin with the work. So don't miss the opportunity to start the work. काम करने का है तो कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता. No business is big or small. No trading is big or small. No industry is big or small. No production is big or small. कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है. आप कर रहे हो उसमें उसका बड़प्पन है. तो आप ये मान के चलो कि you are doing that business, so that business is good. Any question from your end? आपके कोई अगर सवाल है तो आप श्योरली मुझसे पूछ सकते हो. 10 मिनट का टाइम आपको दिया जाता है. कोई भी सवाल आपके दिमाग में तो वो पूछने के लिए. Any question of yours? Please do it. Excuse me, sir. Yeah. Sir, I want to ask that किसी को अगर एंटरप्रेन्योरशिप नहीं बनना हो तो वो क्या कर सकता है? लाइक माय फील्ड इज साइंस. आई एम रिलेटेड टू साइंस फील्ड. आई एम Yeah. डूइंग राइट नाउ BSc microbiology and I am having interest in research field. Okay. Fine. Very good. Nothing wrong in that. किसी को एंटरप्रेन्योर नहीं बनना, किसी को अपना खुद का काम नहीं स्टार्ट करना, बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन कुछ तो काम करना पड़ेगा. भले ही अपने खुद के लिए काम करो या किसी और के लिए काम करो, काम तो आपको करना पड़ेगा. अब सबसे पहला सवाल ये मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ ये, व्हाई डू यू थिंक वन शुड वर्क? To make आपको money क्या and लगता है लोग काम क्यों करते हैं? सेल्फ रिलायबल होने के लिए, इंडिपेंडेंट होने के लिए. इंडिपेंडेंट किस रूप में? सर फ्यूचर सिक्योर करने के लिए. मनी एक बात, और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक हो गया ना. लोग सिर्फ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए काम थोड़ी करते हैं. लोग काम क्यों करते हैं? अभी अगर 100 स्टूडेंट से मैं पूछता हूं कि आप क्यों पढ़ाई कर रहे हो, तो 90% स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं कि हम नौकरी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं. 10% में से हार्डली 5% स्टूडेंट हमको बोलते हैं क्योंकि हमको मजा आता है, वी आर एंजॉयिंग इट. और बचे हुए जो 5 है उसमें से भी 5 अलग अलग जवाब देते हैं कि फैमिली की प्रायोरिटी है, घर वाले बोलते हैं, लोग क्या कहेंगे वगैरह वगैरह. तो प्रायोरिटी लोगों की, मैक्सिमम लोगों की जो प्रायोरिटी दिमाग में है, हम पढ़ाई कर रहे हैं इसलिए क्योंकि हमको नौकरी चाहिए, या हम पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको काम चाहिए. वो अपने लिए करे, किसी और के लिए, हमको काम चाहिए. वी वांट वर्क. वर्क कब मिलेगा आपको? वर्क तभी मिलेगा जब आपके पास में एक्सपर्टीज होगी. तो अगर जॉब भी करना है आपको तो यू नीड टू हैव एन एक्सपर्टीज. You are going to study whatever you are doing. You are doing BSc microbiology, biochemistry, biotechnology, जो कुछ भी आप कर रहे हैं. You are going to do it not only for the sake of getting a degree or a label. You are and you should be doing it for the sake of getting some expertise into that area. ये सोच के काम करोगे ना, तभी आपको मजा आएगा. You not only would enjoy, but you will start. People are watching you always. लोग आप ये मत समझना कि लोग आपको ऑब्जर्व नहीं कर रहे. People are watching you. लोग आपको देख रहे हैं, लोग समझ रहे हैं आप क्या चाहते हो, लोग देख रहे हैं आप क्या कर रहे हो. हमको लगता है कि लोग हमको नहीं देख रहे, लोग देखते रहते, बराबर देखते हैं. और लोग ऑब्जर्व करते हैं. लोग कौन से? तो आपके टीचर्स हैं, आपके कलीग्स हैं, आपके क्लासमेट्स हैं. और ये बात मान के चलिए, आप मैं जो बोल रहा हूँ ये बात मान के चलिए, industry also is observing those who are studying. रिलायंस एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हर NIT में और IIT में टॉप रैंकिंग पेट्रोकेमिकल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देती है. इंडस्ट्री है. हमारे यही नागपुर सिटी के पास में वर्धा में बजाज का इंस्टीट्यूशन है ना, बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट है. तो वो जो इंस्टीट्यूशन है, वो इंस्टीट्यूशन वहां के स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करता है टेक्निकल एरिया में काम करने के लिए. आप जिस डोमेन में काम कर रहे हो उस डोमेन में
ऑब्वियसली इंडस्ट्री आपको बुला रही है, कौन कौन सी इंडस्ट्री बुला रही है आपको? तो थिंक अबाउट द इंडस्ट्री विच यू वुड लाइक टू वर्क एंड स्टार्ट रियल वर्किंग, थिंकिंग दैट यू आर इन द इंडस्ट्री एंड यू आर डूइंग वर्क. अभी ऐसा होता है ना कि हम लैब में जाते हैं, कोई प्रैक्टिकल करते हैं, तो हम ये समझते हैं कि मास्टर ने बताया सिलेबस का पार्ट है, करके हमको कंप्लीट करना है. मोस्ट ऑफ द टाइम सर, आप नहीं करते होंगे, आज का बात अलग है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल डू इट कि भाई सिलेबस है, कंप्लीट करना है, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक तैयार करके मास्टर को दे दिया, मार्क्स मिल गए, कहानी खत्म हो गई. दैट इज नॉट सो, दैट शुड नॉट बी द अप्रोच. अप्रोच क्या होना चाहिए? यू शुड एंटर इनटू इट. अंदर घुस के काम करोगे तभी जाके आपको उसमें अंदर में एक्सपर्टीज मिलेगी एंड यू विल बी हैप्पी विद व्हाटएवर यू हैव डन. अदरवाइज फाइनल ईयर पूरा होने के बाद में देयर आर पीपल हु कीप ऑन सेइंग, देयर आर स्टूडेंट्स हु कीप ऑन सेइंग कि हमारे जो कुछ भी हमने पढ़ा उसका कोई रिलेवेंस नहीं है. ठीक है, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए. यू शुड स्टार्ट पुटिंग इन एफर्ट्स इनटू व्हाटएवर यू आर डूइंग. एंड ऑब्वियसली जॉब्स अपॉर्चुनिटीज उन्हीं को मिलती है जो अपॉर्चुनिटी के लिए अपने आप को तैयार करते हैं. मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, आई कैन assure you, you get the expertise, you will get the job. Anywhere. Jobs are available. Thank you, sir. Jobs are available. Yeah. Anybody else? किसी और को कुछ पूछना है, बात करनी है? आप बोलोगे, बात करोगे, पूछोगे तो बहुत सारे जवाब आपको मिलेंगे. अदरवाइज सर्टिफिकेट के लिए कोर्स करना है तो आई डोंट थिंक इट इज एडवाइजेबल. फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ. किताबों से गधे घोड़े पढ़ते हैं, है ना. किताबों से समझदार लोग नहीं पढ़ते. समझदार लोग एक्सपीरियंस से पढ़ते हैं, अपने और दूसरे के एक्सपीरियंस से. तो अगर आप सीखना चाहते हो तो दूसरे के एक्सपीरियंस सुनो, दूसरे के एक्सपीरियंस को महसूस करो एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट. या सुमित, गोपिका, अंकिता, बाकी लोग कहाँ हैं? इशिका, आर यू देयर? सुन रहे हैं सर. या पूछो, क्या पूछना चाहते. इफ यू डोंट वांट टू आस्क, यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स. आप अपने इन कॉल मैसेजेस में लिख सकते हो. देखो गोपिका का नाम लिया, गोपिका गायब.